کہ زینت مشرقین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں. پھر آپ توجہ کریں کہ زینت مشرقین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں. اور پیٹتا اس لیے نہیں سینا، پیٹتا اس لیے نہیں سینا، میرے دل میں حسین رہتے. ممبر نور پر جلوہ بار، ہم مسلک ہم مشرب، من جملہ علماء اہل سنت، دانشور، ذی عقل، ذی فہم، ذی ادراک، خوش نصیب، جنتی مومنوں، مستورات کنیز فاطمہ، پردہ نشین، عزت ماں، پیاری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. باواز بلند درود شریف. دیکھیے آپ کا ماحول بہت اچھا ہے. مائک والے سے گزارش ہے کہ ہلکا سے ذرا سے مائک نارمل کر دے، میری صحت کا خیال رکھے تاکہ صاف صاف آواز جائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا سفینا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے پہلے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے ایک دو شعر میں تحت میں پڑھتا ہوں، اسے آپ سنیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ بلا کے کوچے میں گھر بنانا. آپ اب اتھل پتھل نہ کریں، بہت کم وقت ہے. 9 بجے میں یہاں آ گیا ہوں اور اتنا وقت میرا ضائع ہوا ہے. کئی محفلیں ہیں، وعدہ وفا کرنے آیا ہوں. تھوڑا سے ماحول بنا کے رکھو. بلا کے کوچے میں گھر بنانا، رضا کے کوچے سے ہٹ نہ جانا. بلا کے کوچے میں گھر بنانا، رضا کے کوچے سے ہٹ نہ جانا. کہے گا صابر تجھے زمانہ، یہ صبر تجھ کو سکھا چکے ہیں. کہے گا صابر تجھے زمانہ، یہ صبر تجھ کو سکھا چکے ہیں. اور ایک شعر کہ زمین کربلا میں فاطمہ کے پھول مہکے ہیں. زمین کربلا میں درود شریف پڑھ لے. ایک گھوٹ پانی دے دیجئے. آپ درود شریف پڑھتے ہیں.
زمین کربلا میں فاطمہ کے پھول مہکے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ جنگل بھر مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ جنگل بھر مہکتا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو ایک شعر میں اپنے عادت کے مطابق پڑھتا ہوں۔ بھائی اسرار بیٹھے ہیں، یہ اہل ترنم ہے، اہل آواز ہے، اہل انداز ہے، اہل فن ہے، لیکن ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور نصیحت آموز شعر، اٹھا بیٹھی کم کیجئے، بہت آپ دے چکے سب کو، تھوڑا سے روک کے رکھیے، صرف آپ سبحان اللہ کہو گے بس۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، سنی اطمینان سے۔ زینت مشرقین رہتے ہیں، جی سنیے صاحب، زینت مشرقین رہتے ہیں، زینت مشرقین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین اس کا حساب کرنا، حساب اس کو بولنا، ساؤنڈ تمہارا جو آیا ہے ساؤنڈ کو حساب دے پہلے اسے پوچھنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر انتظام ہو گیا، محبت سے بولو یا حسین۔ اب میں بہت مختصر سے وقت آپ کے درمیان گزاروں گا، اس شعر پہ توجہ کرو۔ اسرار بھائی سنو کہ زینت مشرقین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، پھر آپ توجہ کریں کہ زینت مشرقین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اور پیٹتا 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 اس لیے نہیں سینا، پیٹتا اس لیے نہیں سینا، میرے دل میں حسین رہتے۔ سنو آپ پہلے، آپ کا سر جھکے نہیں، ہمیں دیکھو، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، پہلے محبت سے بولو یا حسین۔ یا حسین۔ لوگ بتاتے ہیں کہ صحابہ کا رشتہ اہل بیت سے اچھا نہیں رہا، معاذ اللہ صد معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب حضرت عمر کا حال سنو، حضرت عمر کے نام پر کہتے ہو سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کون ہے؟ کون ہے یہ؟ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر آتے۔ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان 40 دن ادھر گھوم کے دیکھتا بھی نہ۔ عمر کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میرے عمر کے پاس اتنی نیکیوں کا خزانہ ہے جتنی تعداد آسمان پر ستاروں کی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ وہ ظالم کہاں ہے جو غیب سے انکار کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عمر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنا آسمان کی ستاروں کی تعداد ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا میرے نبی غیب داں ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں آسمان کی ستاروں کی تعداد۔ اب حضرت عمر کا حال سنو، اور مجھے دعا دے کے رخصت کرنا۔ یہ علامہ صاحب اگر حضور تاج الشرعیہ کے مرید ہیں تو رشتے میں سگے ہمارے پیر چچا، کیونکہ اس خاکسار کو حضور تاج الشرعیہ سے بھی نسبت ہے ان کے، اور حضور اسد میاں صاحب سے بھی نسبت ہے، حضرت علامہ مفتی عمران صاحب المعروف حضور سمنانی میاں سے بھی نسبت ہے، اور ان کے والد محترم حضور منانی میاں سے بھی نسبت ہے۔ پرچار کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے، کسی نسبت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی ان مقدس شخصیات کے دستے مبارک سے عطا ہوا خلافت نامہ بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
सूफी नुसरत मियां साहब किबला सुल्तानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बात को हमेशा याद करना, अहले बैत अतहार का जिक्र खूब करो, हसनैन करीमैन का तज़किरा खूब करो, सैयद कायनात का जिक्र खूब करो, अहले बैत अतहार का तज़किरा खूब करो, लेकिन याद रखना कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी न करना, न गुस्ताखी करने वाले की महफिल में जाना। हजरत उमर का हाल सुनाऊं? अल्लामा साहब मुझको दुआ देंगे। बताओ। हजरत उमर का हाल सुनाओ। बहुत अच्छी टॉपिक। हजरत उमर का हाल सुनो। हजरत उमर का हाल ये था, उनकी एक आदत करीमा थी। देहात में कहते हैं ना कि कपड़ा मिट्टी गर्दा लग जाए धोए छूट जाता है, लेकिन आदत नहीं जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक आदत करीमा थी, एक पाकीज़ा आदत थी कि जब आपकी महफिल में कोई सहाबी आते थे तो आप खूब बात करते थे, लेकिन आपकी आदत करीमा ये थी कि जो कोई आता था साथ में उसका नाम भी लेते थे और भाई भी कहते थे। हाँ, कहो असरार भाई कैसे हो, कहो दिलशाद भाई कैसे हो, कहो असलम भाई कैसे हो, हर बात में कहते थे। हजरत उमर, हाँ असलम भाई, हाँ दिलशाद भाई, हाँ असरार भाई, ये हजरत उमर की आदत थी। कोई भी आपसे मिलने आता तो उसका नाम भी लेते, साथ में भाई भी कहते। लेकिन जब हजरत उमर की बारगाह में इत्तेफाक से कभी मौला अली आ जाते, शेर खुदा आ जाते, बाबुल इल्म आ जाते, पुतराब आ जाते, खैपर शिकान आ जाते, मीरे विलायत आ जाते, इल्मे लदुन्नी के ताजदार आ जाते, हसनैन करीमैन के बाबा आ जाते, खातून जन्नत के शौहर आ जाते, मुस्तफा की दिलेर आ जाते, खुदा के शेर आ जाते। तो हजरत उमर का हाल सुनो। हजरत उमर की आदत करीमा ये थी, कोई भी मिलने आता तो उसका नाम भी लेते थे, साथ में भाई भी कहते थे। लेकिन पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ हजरत उमर के पास जब भी हजरत अली आए हैं तो कई घंटा हजरत उमर हजरत अली से बात करते रहे, लेकिन एक मर्तबा भी कभी हजरत उमर ने अली के नाम नहीं लिया, अली के नाम नहीं लिया। जब भी मुखातब करते थे तो अली नहीं कहते थे, हर बात पर मौला कहते थे, हर बात पर मौला कहते थे। हजरत उमर से पूछा गया कि आपकी महफिल में जब कोई आता है तो आप उसका नाम लेकर बात करते हैं, लेकिन जब आपकी महफिल में अली आते हैं आपने जिंदगी में कभी नाम नहीं लिया। हजरत उमर कहते हैं तुम्हें खबर नहीं है, मेरे कानों ने सुना है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है सहाबा के दरमियान, ए मेरे सहाबा सुनो, जिसके हम मौला हैं उसके अली मौला हैं। जिस दिन से उमर ने ये सुन लिया है, खुदा की कसम उस दिन से सबका नाम तो उमर ने लिया है, लेकिन कभी अली का नाम नहीं लिया है। जब भी मैं कहता हूं तो मौला कहता हूं, तो जब तक रहूंगा मौला ही कहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, महफिलें करो और आपके मसलक में खुतबा की कमी नहीं है जी, आपके मसलक में न नकीब की कमी है, न मद्दाह की कमी है। हक है। हम किसी गैर का मुंह क्यों देखें, तेरे टुकड़े बहुत हैं। इसलिए एक बात और कान खोल के सुनो, यजीद पलीद जो बदमाश था, जो शराबी था, जो जुआरी था, जो ज़िनाकार था, जो फासिको फाजिर था, इमाम आज़म के फतवे को जरा से साफ कर दूं। इस बात को लेकर के कुछ मुनाफिक लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा मसलके हनफिया, यही मसलके हनफिया जो है दौरे हाजिर में जरूरत बन गया। वो लोग भी अपने को हनफी कहते थे जो नबी के गुस्ताख हैं, इसलिए जरूरी था कि हनफिया के साथ साथ मसलके आला हजरत लिखा जा। सुन ले आप, ए टीकर माफी वालों, अभी मैं करबला इतना करीब आ जाऊंगा ना, और फिर मैं तारीख देखकर ही नहीं पढ़ूंगा। इन गुनहगार आंखों ने आला हजरत का करम है, हुजूर ताजुल शरिया का करम है। कई सालों से गौसे आजम बुला लेते हैं, बगदाद चला जाता हूँ, बगदाद जाता हूँ तो करबला की हाजिरी देता हूँ, नजब अशरफ भी जाता हूँ। हजरत मौला अब्बास के मजार पर फातिहा हमने पढ़ी होगी, इमाम असगर के मजार पर फातिहा हमने पढ़ी होगी, सरकार हसरत इमाम सैयदुल शोहदा इमाम आजम शहीद आजम इमाम अली मुकाम के मजार पर हमने फातिहा पढ़ी होगी। अरे हमारा तो टूर ऐसा है, आशिक ऐसे हैं, हम लोग बसरा भी चले जाते हैं, हम लोग ईरान गरीब नवाज के आबो आजाद पे मजार पे फातिहा पढ़ने के लिए हम लोग सूबा सिस्तान चले जाते हैं, मुल्क ईरान गौसे आजम के आबो आजाद के मजार पे फातिहा पढ़ने हम लोग ईरान कस्बा गीलान चले जाते हैं। ये किसी और का करम नहीं, बस ये करम बरेली के ताजदार का है, ये करम 14वीं सदी के मुजद्दिद का है, ये करम बिला शक नायब गौसे आजम अल मारूफ हुजूर आला हजरत
वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान आला हजरत निस्बत आला हजरत मोहब्बत आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद हक है हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया, एक बात दिमाग में रखना कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं, अमीर माविया साहबी सहाबी हैं जी और हुजूर ने फरमाया कि हमारे जितने सहाबा हैं सब हक पर हैं, हक है ये सब हिदायत के सितारे हैं, इनमें तुम जिसके पीछे भी चलोगे अल्लाह तुम्हें राह नजात अता फरमा देगा। तो खबरदार किसी के बहकावे में कभी भी, हालांकि यजीद पलीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया हैं जी, लेकिन ये मसला मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आपका अकीदा महफूज हो जाए और जिस मसलक के टुकड़े हम खाते हैं वो टुकड़ा खाने का हक अदा हो जाए सही है पहले मोहब्बत से बोलो या हुसैन। या हुसैन टीकर माफी वालों, सैकड़ों महफिलें पढ़ी हैं हमने यहाँ। आज के 10-15 साल पहले मैं बहुत आता था, अब थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती महरूमी, वक्त की कलीलगी, लोग याद करते फिर भी मैं नहीं पहुंच पाता, उसके लिए माजरत। पहले मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुन लीजिए कुछ बातें अगर आपके समझ में आ जाए तो, हम नाम लेना नहीं चाहते कि महफिल का तसर्रुफ कम हो जाएगा। आज एक जमात इस पर आमादा है कि कौमी तरह यजीद का ठेल के घुसेड़ के जन्नती साबित किया जाए। जी जी सही है साख है। अबे जो लानती है वो रहमती कहां से हो सकता है? सच है। सुन लो, ये हुजूर की एक हदीस बयान करते हैं जहां से सीधे साधे सुन्नियों को गुमराह करते हैं। ये बताते हैं कि यजीद, इस्लाम में एक जंग हुई है जिसका नाम है जंगे कुस्तुनतुनिया, नाम याद रखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम में एक जंग हुई है जिस जंग का नाम है जंगे कुस्तुनतुनिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जंगे कुस्तुनतुनिया पर, जंगे कुस्तुनतुनिया पर जो सिपाही जंगे कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो सिपाही जन्नती है। अब ये बहकाते हैं कि हुजूर ने कहा कि जंगे कुस्तुनतुनिया पर जो लश्कर हमला करेगा, इस्लामी लश्कर, वो जन्नती है। तो ये कहते हैं मुनाफिक कि जंगे कुस्तुनतुनिया में यजीद भी तो शामिल था, फिर तो वो भी जन्नती है। अब एक तरतीब से बयान किया कर, कुस्तुनतुनिया पर 7 मरतबा इस्लामी लश्कर ने चढ़ाई किया है और हुजूर ने फरमाया जंगे कुस्तुनतुनिया पर वो इस्लामी लश्कर अव्वल जैसीन, जो इस्लामी लश्कर पहला लश्कर जंगे कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो जन्नती है। और जब पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर हमलावर हुआ था, या तो यजीद पैदा ही नहीं हुआ था और पैदा हुआ भी था तो डिब्बे का दूध पी रहा था। सही है सही है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको सुन लो, शरीयत के मसले होटल पर नहीं समझे जाते। जी 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 बहुत बढ़िया। ये सीधे साधे सुन्नियों को गुमराह करते हैं। हुजूर ने फरमाया कुस्तुनतुनिया पर अव्वल जैशिन, जो सबसे पहला लश्कर हमला करेगा वो जन्नती है। और जब पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी हमलावर होता है ना, तो या तो यजीद पैदा ही नहीं था, और यजीद पैदा भी था तो किसी छोटी चारपाई खिलौने पर बिस्तर पर लेट करके शीशी का दूध पी रहा था। तो कहां उसको घुसेड़ रहे हो? पेशाब करने का भी शूर नहीं। कहां घुसेड़ रहे हो? कहां घुसेड़ रहे हो? मारे घुटना फूटा यार, तुम्हें ये रवायत दिखाई नहीं पड़ती? तो हुजूर ने फरमाया जो पहला लश्कर अव्वल जैसी, जो पहला लश्कर हमला करेगा वो जन्नती है। चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। एक मर्तबा चमगादड़ों ने जंगल में हंगामा मचा दिया,
सारे जानवरों की मीटिंग बुलाई, जंगल के राजा शेर को बुलाया और कहा प्रधान जी ये बताइए जब से हमारी जमात पैदा हुई आज तक सूरज क्यों नहीं निकला? तो जंगल के शेर ने तमाम चमगादड़ों के चेहरे पर एक एक तमाचा मारा, बोला जालिम सूरज रोज निकलता है, ये सूरज के निकलने की कमी नहीं है, जालिम ये तेरी आंखों की कमी है। सच है। अब ये रवायत पढ़ता है तो पूरी पूरी पढ़ा कर। नीम हकीम खतरे जान, मैं मुल्ला ईमान जान। अब एक सुनो, खबरदार हंसने हाथ पकड़ बाहर कर दूंगा, यू गो। अब अगर कुछ अरबी जान तो मैं कह दूंगा प्यार से सदी किया हबीबी बर्रा, फिर बाद में प्यार से बुलाकर पूछा क्यों की फाल अच्छे हो, पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया के बारे में सुन लो। हजरत अमीर मुआविया सहाबी है, ऐसे सहाबी हैं कि पूरी जिंदगी हुजूर ने जितने खुतूत लिखाए हैं उसके तहरीर करने वाले हजरत अमीर मुआविया हैं। सच है। जितनी राज की बातें होती थी, राजदार मुस्तफा है हजरत अमीर मुआविया। सच है। और एक बात और सुनो कान खोल करके, हजरत अमीर मुआविया क्या है? पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हम अमीर मुआविया कहते हैं ना, अमीर के माने बादशाह, शहंशाह, इमाम, रहबर, रहनुमा, अमीर कारवां। हाँ, अमीर कारवां, चीफ जस्टिस, फैसल, जज, वो जज, आदिल, ये सारे लुगात में सब आएंगे। हजरत अमीर मुआविया के बारे में सुन लो ताकि अकीदा बच जाए। और जो मैं आला हजरत का टुकड़ा खाता हूं ना, वो लुकमे हमारी कुव्वत में इजाफा कर दे। पहले मोहब्बत में बोलो या हुसैन, जोर से बोलो। अच्छा हमका एक बात बतावा, तू देहात में हजरत इमाम हुसैन हूं या हजरत इमाम हसन? क्या ये कोई काम जो करने वाला ना हो शरीयत में नाजायज हो, जो मानने वाला ना हो शरीयत में? क्या इमाम हसन या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम, क्या ये दोनों भाई कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो शरीयत में करने वाला ना हो, नाजायज हो? क्या इमाम हसन ऐसा कोई काम किसी के दबाव में कर सकते हैं, किसी लालच में, किसी के डर से? जब 22,000 के लश्कर के सामने न डरा, उनकी तलवार, उनके नेज़े, उनके बर्छी, उनके भाले उनके सामने न डरा, उनके बड़े भाई बिरादर कबीर इमाम हसन क्या ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि जो शरीयत में करना मना हो और इमाम हसन किसी के डर में करेंगे? ऐसा है? क्या कोई काम इमाम हसन ऐसा कर सकते हैं जो किसी लालच में हो? क्या इमाम हसन ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो किसी के दबाव में हो? तो आप यही कहेंगे नहीं, वो फातिमा के शहजादे हैं, वो फातिमा का शेर है, अली के गुलशन का दिलेर है, वो कोई काम ना दबाव में कर सकते हैं, ना लालच भी कर सकते हैं, ना किसी के डर से कर सकते हैं। वो जो करेंगे एक ही कालम है, वो जो करेंगे हक करेंगे, वो जो करेंगे सच करेंगे। अब मुझे जुमला कहने दो। हाँ आप जाए, आप दरूद पढ़े ताकि सिलसिला टूटे ना। यार पहले वाला टीकर बहुत तरक्की कर गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले वाला टीकर बहुत डेवलप कर गया। जरा आवाज भी तो निकले, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अब सुन लो, जब इमाम हसन, इमाम हुसैन कोई काम किसी के दबाव में नहीं कर सकते, कोई काम किसी के डर से नहीं कर सकते, कोई काम किसी लालच में नहीं कर सकते, जो करेंगे हक करेंगे, जो करेंगे सच करेंगे। अब यजीद पलीद के बाप हजरत अमीर मुआविया, ये हुजूर के सहाबी हैं, इनका नाम मुआविया था। आखिर इनके साथ अमीर कैसे लगा? सबसे पहले मुआविया को अपना अमीर, अपना इमाम, अपना मसीहा, अपना रहबर, अपना आइडियल, सबसे पहले मुआविया को अमीर का लक़ब किसने दिया है? तो कान खोल के सुन ले, मुआविया सहाबी थे, नाम मुआविया था, लेकिन अमीर का लक़ब नहीं था। अमीर का लक़ब अगर सबसे पहले किसी ने दिया है वो इमाम माना है, वो कोई और नहीं, इमाम हसन ने माना है, इमाम हसन ने माना। हक है, हक है, सबसे पहले इमाम हसन ने माना है। तो अगर ये इमाम हसन का सच्चा मानने वाला है जी, तो जालिम दो रंगी छोड़ दे के रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा, मीठा मीठा हब कड़ुआ कड़ुआ थू। अगर इमाम हसन और हुसैन के सच्चे मानने वाले हो तो जिसे हसन ने माना उसको मानना,
جسے حسن نے امیر مانا اسے امیر بولو نا. جسے امام حسن نے اپنا امیر مانا. پہلے وہ معاویہ تھے, حضور کے صحابی تو تھے, لیکن نام معاویہ تھا, کوئی لقب نہیں تھا. لقب دیا امام حسن نے. تو کیا کسی ایسے کو حسن امام مان لیں گے جو امامت کے لائق نہ ہو؟ نہیں. تو اب امام حسنین کریمین کے ماننے والوں, حضرت امام حسنین کریمین کو بھی مانو اور حضرت امیر معاویہ کو امیر بھی مانو. یہ ہمارا مسلک کہتا ہے. پہلے محبت سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. جی. ابھی میں شعر پڑھوں گا, آپ پریشان نہ ہو. جی زبی صاحب. منقبت کا وہ شعر پڑھوں گا جو آپ کے کانوں نے شاید سنا ہوگا تو بہت کم, ورنہ نہیں یہ سنا ہوگا. ایک مرتبہ زور سے کہہ دو یا حسین. یا حسین. ہمیں یہ آگے والے بچے ہی بولتے ہیں, کیا بوڑھے دعا کر رہے ہیں کیا؟ آپ لوگ مسل کے بولے یا حسین. ایک شعر پڑھتا ہوں, پہلے سن لیجئے اس کو. سنا دوں؟ پڑھ دوں؟ سنو. حسین آپ کو شوقت سلام کرتی ہے. حسین آپ کو شوقت سلام. واپس سے بولو سبحان اللہ. حسین آپ کو شوقت سلام کرتی ہے. حسین آپ کو رفعت سلام کرتی ہے. حسین آپ کو عزت سلام کرتی ہے. حسین آپ کو عظمت سلام کرتی ہے. حسین آپ کو شہرت سلام کرتی ہے. اب ایک شعر پڑھ دوں, ایک شعر پڑھوں. اب اگر کسی کے نام آ جائے تو آ جائے. ایک شعر پڑھوں. پہلے محبت سے میں بولوں آقا حسین تو آپ بولے مولا حسین. یہ بولیے گا آقا حسین, مولا حسین. باپا گلا نہیں کہ آقا حسین, مولا حسین. اب بند پیش کرتا ہوں, سنو. حسین تم کو نمازی سلام کرتے ہیں. محبت سے بولو یا حسین. تم کو نمازی سلام. کلام پڑھنے کا وقت نہیں. حسین تم کو نمازی سلام کرتے ہیں. بولنا پیار سے شریک ہو جائے اس میں, کرتے بول. حسین تم کو نمازی سلام کرتے ہیں. ہاں تمہیں میدان سے غازی سلام. ہاں حسین تم کو نمازی سلام کرتے ہیں. تمہیں میدان سے غازی سلام. اللہ اللہ اللہ. ہاں تمہیں تو کعب سے حاجی سلام. اللہ اکبر. وہاں بھی نہ کرے مر جائے ہم سے کیا مطلب. حسین تم کو صحابی سلام کرتے ہیں. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد. واہ بھائی واہ. زندہ باد زندہ باد. جی میاں حضور. باتیں بہت کرنی ہے. واہ واہ واہ. علامہ صاحب کبھی اس غریب کو بلایا کرو تو وقت سے وقت دیا کرو. وقت سے وقت. اس ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے کی دکان انصاری کلیکشن میں لٹا کر کے سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے مولانا کی نیت بدل گئی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے اوپر دیکھے بولے حضرت ہاں, بولے آج تو نہیں پرسوں آؤں گا, یہاں کرتے کپڑا بہت اچھا ملتا ہے. ہم نے کہا نیت کو سنبھال کر رکھو بھائی. پہلے محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ جملہ دوہراؤ آقا حسین. مولا حسین. ہمیں پوری آواز آئے یار. آقا حسین, مولا حسین. ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ صاحب, جو سنیے تو. آپ نے نظامت نقیب ہے, آپ شاندار نقیب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. آمین. شعر سنیے, شعر سنیے. آقا حسین مولا حسین. مولا حسین. آقا حسین مولا حسین. سرکار حسین تمہیں تو قیصر و کسریٰ سلام کرتا ہے. تمہیں تو بس بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں تو قیصر و کسریٰ سلام کرتا ہے. تمہیں بغداد و بصرہ سلام. واہ واہ واہ. ہاں تمہیں تو قیصر و کسریٰ سلام کرتا ہے. تمہیں بغداد و بصرہ سلام کرتا ہے. اور جو پڑھوں گا آگے نا, جی جی. سبحان اللہ. پہلے محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو یا حسین. یا حسین. تمہیں تو قیصر و کسریٰ سلام کرتا ہے.
तुम्हें बगदाद बसरा सलाम करता है, हाँ तुम्हें हर पीर का शजरा सलाम करता है, हाँ तुम्हें हर पीर का शजरा सलाम करता है। तुम्हें तो दरिया के धारे सलाम कहते हैं हुसैन, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आज है हमको की हमने भी इबादत की है, यानी चेहरे गुंबद खजरा की तिलावत की है। ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब एक नारा और लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, जाने आला हजरत जिंदाबाद, शोदाए करबला जिंदाबाद, साफुला जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब आप ही ईमानदारी से बताइए, नीमर घोड़ी सजैने पलान। अभी मैं तारीख करबला के करीब तर करीब भी नहीं पहुंचा। बताओ कि मुझको 2, 2.5, 3 घंटे का वक्त चाहिए कि नहीं? जी, तभी तो आपको मुतमईन कर पाऊंगा। बेशक। मैं तिजारत करने नहीं आया हूँ, मासा मसलके आला हजरत का छोटा नासिर हूँ, अपना पैगाम देने आया हूँ, अल्लाह सलामत रखे, अपना मिशन पूरा करने आया हूँ। रिश्ते के पीर चचा मौजूद है, हमारी जमात के उलमा मौजूद है। खबरदार एक बात सुन लीजिएगा ए मियाँ, कभी जिंदगी में भूल कर किसी आलिम दीन से हसद न करना, आलिम दीन से बुग़्ज़ न रखना। इनके चमकते कुर्ते और चमकता दामन, इनकी जायज कमाई के 10-10 रुपए इकट्ठा किए हुए एक मोटरसाइकिल, जब कोई आलिम दीन चले तो हसद के आग में जला न करो। मुफ्तियों से मालूम कर लेना, मुफ्तियान इकराम से, रवायत गलत साबित हो जाए, जो सजा चोर की नुसरत कादरी रज़वी बरकाती की है। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े मुस्तनद सहाबी हैं। हुजूर का हर सहाबी मजबूत है। हजरत अबू हुरैरा की रवायत सुन लो ताकि जहन्नम में जलने से बच जाओ। आज हम इल्म की कमजोरी की बुनियाद पर मौलाना जा रहे हैं, हजरत कह दो तो क्या हो जाएगा, मौलाना साहब कह दो तो क्या हो जाएगा। अब तुम्हारे खानदान का कोई बेटा है आलिम दीन बन गया, अब ये बताते हैं, ये समझते मौलाना कहने में तौहीन है। सुन अब बिला वजह नाम लेके बुलाते हैं, ए अब्दुल्ला, अल्लामा साहब कह दो, मौलाना साहब कह दो, मौलाना साहब कह दो, क्या नाम लेना जरूरी है? खबरदार, अभी तक आपका भतीजा था, अब वो आपका भतीजा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का नायब है, वो मजहब इस्लाम का सिपाही है, वो हदीसों कुरान का ज़ाहिरी मुहाफिज है, उसका एहतराम जरूरी है। इनकी मोटरसाइकिल चमकते कुर्ते के दामन से कभी हसद न किया करो। आप खेत की सिंचाई करते हो, आप एक किसान आदमी हो, खेत सींचते हो, एक बकुला जिसका कलर वाइट है दौड़ता हुआ आता है, आपके खेत से कीड़े चुनता है, उसको आलूदगी मिट्टी लगती है, और फिर कभी आप उसके उस पंख पर मिट्टी नहीं देखते, वो एक पानी में गोता लगा के साफ हो जाता है। एक बगुला पूरी जिंदगी वाइट रहे तो तुम्हें ताज्जुब नहीं होता। और नबी के दीन का मुहाफिज, आला हजरत के मसलक का मुहाफिज, जायज में बरकत होती है। अब आप कहोगे हम 10,000 रुपए कमा के पूरा नहीं करते, इनका 5,000 रुपए कैसे पूरा होता है? आप 10,000 कमाते हो तो 7,000 डॉक्टर को देते हो, और ये नबी का काम करते हैं, मुस्तफा इनका काम करते हैं। हमें साल गुजर जाता है, किसी आलिम के बेटी बेटा बीमार नहीं होते। वाह 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 वाह, सच है, हक पर मबनी है।